पूछो जाके उनसे जिन पे रोशनी नहीं, पूछो जाके उनसे कैसी लगती है कमी। Good evening, people. I, Yahya Abdul Rahman, welcome you all on the behalf of the OptoHub, a platform set up with an incentive of taking optometry a step forward and provide aspiring optometrists an opportunity to enhancing their knowledge and proficiency. An investment in knowledge pays the best interest. You people can pen down the queries in the chat box, which should be collectively discussed in the end. And in the case of the session end, make sure to rejoin with the same link. Today, we have Optum Aarti Gupta Veermani, who will be speaking on prosthetic contact lens. It is very interesting topic, so people gear up yourself. A brief introduction about speaker. She has pursued Bachelor in Optometry from Venu Eye Institute, New Delhi. Currently, she is working in Silver Line Laboratories and Purecone Private Limited as an contact lens educator since 2017. She has a vast experience in specialty contact lens and conducting training session on specialty contact lens in various hospitals in Delhi NCR. So a very good evening, ma'am. It's a pleasure to have you here. Ma'am, over to Yes, you. yes. Okay, sir. Hello, everyone. This is Aarti from Silver Line Laboratories. Today, we are talking about the soft prosthetic lenses. Basically, its material is silicon tube. Water content is 75%. Its decay value is 43 decay. Generally, we need 18 to 24 decay for a daily wear. And its tensile strength is 0.17 and its elongation is 170. We can stretch lens up to 170%, and its light transmissibility is more than 95%. We are talking about the properties of the prosthetic lenses. Now, these prosthetic lenses are yearly disposable lenses. Now, lens symmetry. Basically, hello. Basically, the cornea is a aspheric, oval in shape, taper from the center and flat from the periphery. So we need a aspheric lenses for the oval shape cornea, for a aspheric cornea. तो जो हमारे lenses है, that is a aspheric lenses, center से steep and periphery से flat lenses. तो वो क्या करता है, जो alignment है आपके cornea पे, that will be more comfortable, that will be more good. तो जो हमारी geometry है, that is a aspheric geometry. एंड डिजाइन इज बैक ए स्फेरिक डिजाइन. तो जो भी हम डिजाइन करते हैं वो हमारे बैक सरफेस पे होता है. एंड इट्स के जो पेरिफेरल एरिया है उसमें जो कर्व्स हैं दैट इज अ मल्टीपल कर्व्स. वो क्या करेगा, लेंस को स्टेबलाइज करता है एंड प्लस दैट विल बी मोर गुड लैंडिंग. Now its front surface design has a three zones. First is optic zone and second is lentic zone and third is the peripheral zone. Optic zone जहाँ पे आपके लेंस की सारी पावर इनकॉर्पोरेट होती है. Peripheral zone जहाँ पे आपका लेंस स्क्लेरा के ऊपर रेस्ट कर रहा है. एंड थर्ड इज द लेंटिक जोन. इट इज द बेसिकली कर्वेचर जो आपके ऑप्टिक जोन को पेरिफेरल जोन से कनेक्ट करता है. एंड इसके जो थिन एंड राउंडेड एज that make the lens more comfortable landing on the sclera. Now its landing is very good. Now for a soft prosthetic lenses we need three curvatures. First is base curvature, second is power and third is diameter. For any soft lenses how to measure the base curvature. Basically base curvature is the back curvature of the lens. So for the soft lenses we need a base curvature. और तो जो बेस कर्वेचर निकालते हैं वो विद द के रीडिंग्स, जो भी आपकी के रीडिंग्स है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उसका मीन के निकाल के देन एट 0.80 वो हमारा कॉर्निया का कर्वेचर देगा. तो फॉर द सॉफ्ट लेंसेज वी नीड अ बेस कर्वेचर. तो अब क्या करते हैं, जहाँ पे भी हम प्रोस्थेटिक लेंसेज लगाते हैं, प्रोस्थेटिक लेंसेज उस कंडीशन में लगाते हैं जहाँ पे भी डिफॉर्मिटी होती है आई के अंदर. तो जब हम ये लेंस लगाएं तो इसमें क्या है, जब बेस कर्वेचर यहाँ पे क्या एक इरेगुलर एक ओपेसिफिकेशन वाला सरफेस है जहाँ पे आपको प्रोस्थेटिक लेंस लगाना है. तो इसलिए इसमें के रीडिंग्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, बिकॉज जो के रीडिंग्स होंगी दैट गिव यू 3 mm कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया. जो सेंट्रल 3 mm होगा उसका कर्वेचर देते हैं. तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर ट्रायल सेट की रेंज होती है. उसमें स्टीपर कर्वेचर, फ्लैटर कर्वेचर और जो आपका मीडियन कर्वेचर है. तो जनरली हमारे जो मेजॉरिटी केसेस हैं वो आपके जो मीडियन कर्वेचर है M2X,
860 mm उसमें कवर हो जाते हैं। अदरवाइज बाकी जो बच्चे लाइक कि बहुत ज्यादा फ्लैट कॉर्निया है, बहुत ज्यादा स्टीप कॉर्निया है, then we can use a 740 mm at the most steeper base curvature or 9.80 mm. It is a very flatter curvature, तो we can use. तो ये वाइड रेंज आपको लाइक पूरे इसमें हमें कहीं नहीं मिलेगी. इट्स अ वाइड रेंज प्रोस्थेटिक लेंसेज वी कैन मेक. Second is the power. Basically for the deformity eye हम prosthetic lens लगाते हैं, पर मे भी हो सकता है चलता है deformity on the cornea but center pupil is clear, then उस condition में we can incorporate power into the lens. So if patient has some spectacle power maybe +2 +3, then we can incorporate that power into the lens. If a power is more than 3 diopter, 3.25 diopter, then we can vertex distance, then we can compensate the vertex distance, and then we accordingly incorporate the power into the लेंस. तो बेसिकली अगर ±20 पावर तक भी पेशेंट का नंबर है तो वो भी हम लेंस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. And third is the diameter. Diameter is very important for any soft contact lens fitting, because जो soft contact lenses है वो रेस्ट करते हैं स्क्लेरा के ऊपर, तो उसके लिए परफेक्ट लैंडिंग के लिए वी नीड अ परफेक्ट डायमीटर लेंस. मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है 14.50 डायमीटर इज फाइन. तो 14.50 आपका लाइक 60-70% केसेस को कवर कर लेता है. पर लाइक कुछ इरेगुलर कॉर्नियाज हैं जहाँ पे कि अगर आप किसी भी कर्वेचर का लेंस लगा रहे हैं, एज फ्लोटिंग इज देयर, लाइक एज ऊपर की तरफ उठ रहा है, एज फ्लोटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में व्हाट वी कैन डू कि लाइक हम थोड़ा सा डायमीटर इंक्रीज कर सकते हैं. लाइक माइक्रो कॉर्निया, जिसमें कॉर्निया छोटा होता है, माइक्रो कॉर्निया है, तो उसके लिए वी नीड अ स्मॉलर डायमीटर. देन इसलिए लाइक जो स्टैंडर्ड इज 14.50, बट वी कैन मेक अ 12 mm to 20 mm. 20 mm like उस conditions में like there is some deformity on the sclera, then उस condition में we need a larger diameter, then we can play with the diameter also. तो basically हमें fitting के लिए 3 पैरामीटर चाहिए प्रोस्थेटिक के, वो है आपका बेस कर्वेचर, पावर एंड डायमीटर. नाउ प्रोस्थेटिक लेंसेज. प्रोस्थेटिक लेंसेज क्या होते हैं, बेसिकली किसी भी डिजीज की वजह से, ट्रॉमा की वजह से डिफॉर्मिटी हो जाए आई के अंदर, तो उससे क्या होगा, फिजिकल अपीयरेंस विल बी नॉट गुड. तो नॉर्मल आई को हम, जो आपकी नॉर्मल आई है और एक डिफॉर्मिटी आई है, तो डिफॉर्मिटी आई से नॉर्मल आई से डिफॉर्मिटी आई को मैच करके हम जो टिंटेड लेंस या कलर्ड लेंस लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रोस्थेटिक लेंस, कि जो पेशेंट की फिजिकल अपीयरेंस है उसको इनहेंस करने के लिए. Basically prosthetic lens, the tinted colored lens that match the better eye to disfigure eye to enhance user appearance which may be lost through trauma or disease. Prosthetic, this is the clear, this is the center pupil black, pupillary area, and this is the iris. Basically prosthetic lenses of 4 types. First is solid pupil with iris. सॉलिड प्यूपिल आइरिस मींस लाइक पेशेंट की डिफॉर्मिटी, पेशेंट की जो डिफॉर्मिटी है दैट इज ऑन द कॉर्निया. तो इसमें क्या होता है, जो आपका पेरिफेरी जोन होगा दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, जो आपका स्क्लेरा के ऊपर रेस्ट कर रहा है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट. एंड लाइक अगर डिफॉर्मिटी आपके पूरे एरिया में, लाइक पूरे कॉर्निया में है, एंड लाइक प्यूपिल लाइक विजन इज नॉट देयर, तो उसको जो हम सेंटर प्यूपिल देंगे दैट शुड बी ब्लैक. एंड द मिड पेरिफेरल इज आइरिस पेंटेड, तो जो हम नॉर्मल आई से मैच करते हुए लगाएंगे. एंड दिस लेंस इज आल्सो कॉल्ड डी टाइप लेंसेज. डी टाइप मींस कि लाइक द जो पाथ है वहां से लाइट पास नहीं हो पा रही, ब्लॉकेज इज देयर. दिस इज द डी टाइप लेंसेज. सेकंड इज द second is clear pupil with iris. That means some deformity is on the cornea, but patient pupil is clear, vision is there. In that condition, we need a clear pupil with the iris. The periphery is clear, transparent, and the iris, we make iris like a painted iris to make a colored iris, and center pupil will be clear, ताकि patient की जो deformity है वो हट के लाइक उसके अंदर हम विजन इज देयर, तो उसमें हम सी टाइप का सेंटर पीपल क्लियर लेंस लगा रहे हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड अ सी टाइप लेंसेज.
And third is solid pupil only. This is also known as the occluder. This is basically occluder lenses, and we call it a O type lenses. And fourth is the solid ring only. In these lenses, all lens are transparent, but the mid peripheral, limbal area is painted, iris painted. This is also called R type because ring is there. Now, this all parameters, tints, we can play with all the parameters in these tints. Iris diameter we can extend. Generally, is 11.80 is iris diameter, which is almost 60-70% cases cover करता है. और इसमें हम चेंज कर सकते हैं, इसका प्ले कर सकते हैं 10 mm to 12.50 mm तक हम इसमें लाइक चेंजेस कर सकते हैं कि अगर आपको आइरस छोटा चाहिए लाइक इन द माइक्रोकॉर्निया, एंड अगर आइरस बड़ा चाहिए तो 12.50 तक वी कैन एक्सटेंड. Now second is solid pupil diameter. Solid pupil standard range is 4.50, but we can make 2 mm to 9 mm. And third is the clear pupil dia. Standard range is 4.50 mm, and we can extend from 2 mm to 6 mm. ये बेसिकली क्लियर प्यूपिल डाया यूज हो रहा है जहाँ पे भी हमारा विजन है, तो उसमें हमें क्लियर प्यूपिल रखना है, और जहाँ पर भी विजन पेशेंट का विजन नहीं है देन वी कैन मेक अ सॉलिड प्यूपिल डाया. This all the shades available. It's a chocolate brown, reddish brown, red brown, grayish brown, very dark, medium, light medium. These all shades we can make for the prosthetic lenses. Generally Indian colors are brown, so that's why chocolate brown color is the 60-70%, 70-80% cases covered with the chocolate brown color, and many other shades can be developed as per the requirement. अगर इसके अलावा भी कोई shade चाहिए तो वो भी we can make. Now, specialty tinted lenses. First is this figure. See the cases in this cornea. The whole cornea has a opacification. Pupil is not visible. In these cases, we can use a center pupil black. Periphery landing on the sclera should be transparent, and the iris and the center pupil is black, called as the D-type lenses. This lenses is used in a traumatic cases or a disease cases. Second is the pinhole lenses, C-type lenses. This lens is basically used for a corneas. Opacification is there, but there is some spectacle power into the eye, or there is a vision in the eye. We can use this C-type lenses. or in a albinism patients. Like albinism patients में क्या होता है, iris is not there, so too much glare, photophobia, patient has a too much glare and photophobia. So in this condition, the pinhole lens is used as a reduce the glare and the photophobia. Or other cases like iris coloboma, and any trauma due to which iris is not there. So that if iris is basically हमारी आई में जो light control करता है वो क्या करता है, pupil control करता है. If pupil is not there, pupil size is bigger, तो वो क्या करेगा, उस वजह से काफी glare and photophobia होगा. तो उसको reduce करने के लिए we are making a artificial pupil. This is called a pinhole. तो ये क्या करेगा, reduce photophobia. तो काफी सारे पेशेंट्स जो एल्बिनिज्म के पेशेंट्स है, कोलोबोमा के पेशेंट्स है, तो विद द पिनहोल लेंसेज दे कैन इम्प्रूव. Albinism, iris coloboma. Coloboma may be because of the trauma or may be congenital. Now, third is the occluder O-type black lenses. Basically, this lenses is used for the occluder lenses. This lenses are used as a patching because you know like जो normally क्या होता है कि जो भी आपके childrens होते हैं उसमें amblyopia होता है, एक आई का विजन इज गुड एंड अदर आई विजन इज नॉट गुड. तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, लाइक जो आपकी गुड आई है उसको
पैच कर देते हैं, ऑक्लूड कर देते हैं, ताकि जो भी स्ट्रेन है, जिस आई का विजन कम है उसमें और स्ट्रेन पड़े, लाइक उससे स्ट्रेन देके वो विजन और क्लियर हो, तो वो एज अ ट्रीटमेंट देते हैं। तो वो जनरली क्या होता है, स्पेक्टिकल्स में भी देते हैं और पैच में भी देते हैं। पर लाइक ये क्या होता है, चिल्ड्रंस के अंदर होता है। पर जब चिल्ड्रंस के अंदर होता है, पर चिल्ड्रंस के अंदर लाइक अपने स्पेक्स उतार दिया, पैचिंग हटा दिया, उस कंडीशन में वी कैन गिव द ऑक्लूडर। ये बिल्कुल पैचिंग की तरह काम करेगा, और पेशेंट लाइक बच्चा वो अपने हाथ से निकाल भी नहीं सकता। तो इट्स बेटर कि हम उसको एज अ ऑक्लूडर हम पैचिंग देते हैं। उसमें क्या है, कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ द आई। तो जो भी लोड पड़ेगा, जो एम्ब्लायोपिक आई है उस पर पड़ेगा, तो इससे पेशेंट का जो इम्प्रूवमेंट होता है दैट वुड बी वेरी फास्ट। एंड जो भी नर्व पाल्सी के केसेस है, जहाँ पे भी डेविएशन है, डेविएशन इज देयर, डेविएशन की वजह से क्या होता है, दोनों इमेज अलग अलग पॉइंट पे बन रही होती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो नॉर्मल आई है उसको ऑक्लूड करके विद द ऑक्लूडर, तो हम फोर्स करते हैं कि जो डेविएटेड आई है वो फोकस कर सके। जब वो फोकस करेगी तो इसमें काफी इंप्रूवमेंट होता है, डेविएशन को भी काफी हद तक कम करते हैं। तो उन कंडीशन में वी यूज ऑक्लूडर एज अ पैचिंग। नाउ देन ये आर टाइप ब्राउन लेंसेज, बेसिकली ये लेंसेज यूज होते हैं हमारे आर्का सिनाइलिस में। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें लाइक क्या था, 40-50 एज के बाद हमारा जो लिम्बल एरिया होता है वहाँ पे उसे ओपेसिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जस्ट फॉर द कॉस्मेटिक अपीयरेंस। इसमें क्या करते हैं, द होल लेंस इज ट्रांसपेरेंट, और जो उसका लिम्बल एरिया है दैट शुड बी आइरस पेंटेड। So just for the cosmetic appearance, we can give the R-type lenses. Basically, this lens is used for the age-related. जहाँ पे भी ये opacification है, limbal opacities है, we can give these lenses. Now, scleral degeneration. In this condition, basically the cornea is clear, pupil is clear, everything is fine, but there is some pigmentation on the sclera, nevus, maybe nevus scleral degeneration. तो जिस वजह से क्या होता है, like जो sclera का color है that is a bluish or grayish, and in this condition we can make a larger diameter lenses. तो जो लेंस होगा उसके अंदर जो कॉर्निया वाला पार्ट है दैट इज क्लियर, और जो भी उसका पेरिफेरल होगा, जो भी स्क्लेरा के ऊपर लैंड कर रहा है, उस पार्ट को हम जो नॉर्मल आई है उसके स्क्लेरा से मैच करते हुए बनाते हैं, ताकि दोनों आई एकदम सेम लगे, इक्वल लगे, डिफॉर्मिटी नहीं लगे। तो स्क्लेरल फॉर द स्क्लेरल डिजनरेशन लेंसेज वी आर यूजिंग द स्क्लेरल डिजनरेशन लेंस। 11.80 जनरली जो भी आपका HVID है वो हम रखते हैं, वो होता है आपका ब्राउन आयरस से मैच करता हुआ, और जहाँ पे भी लैंड कर रहा है, जो भी स्क्लेरा के ऊपर पार्ट रेस्ट कर रहा है दैट शुड बी मैचिंग विद द अदर आई। Now the sport side lenses, high contrast lenses, basically for the players जो lights आप sports हो गए, टेनिस, फुटबॉल, बेसबॉल, तो जहाँ पे भी हमारा ग्लेयर होता है, ये क्या करता है, एक आपके कंट्रास्ट को इनहेंस करता है, एंड प्लस जो आपका ग्लेयर है उसको रिड्यूस करता है। तो उसमें भी हम वो टाइप येलो लेंसेज वी कैन यूज। लो विजन पेशेंट्स, जहाँ पे भी लो विजन पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे कंट्रास्ट है वो पुअर होता है, तो उस कंट्रास्ट को इनहेंस करने के लिए वी कैन यूज द हाई कंट्रास्ट लेंसेज। एंड देन नाइट विजन में ऑब्वियसली ग्लेयर्स होती हैं, कंट्रास्ट पुअर होता है, देन इन दैट कंडीशन आल्सो वी कैन यूज द हाई कंट्रास्ट लेंसेज। एंड ग्रीन टाइप इज ऑल्सो हाई कंट्रास्ट लेंसेज, ये भी आपके कंट्रास्ट को इनहेंस के लिए काम करते हैं, लाइक जैसे आपके सनग्लासेस हैं, ग्रे सनग्लासेस, तो इसका बिहेवियर इज सेम, बस इसको आपको आइस लगाना है। Now, fourth is the this is the color deficiency trichromate lenses, जहाँ पे like कलर विजन डिफेक्ट है। तो कलर विजन डिफेक्ट दो रीजन से हो सकता है, मे बी हेरिडिटरी हो, मे बी एक्वायर्ड हो। तो जो भी हेरिडिटरी, जहाँ पे भी आपकी रेड और ग्रीन कलर की डेफिशिएंसी होती है, तो वहाँ पे ट्राइकोमेट वी कैन यूज। जनरली क्या होता है, जो भी कलर डेफिशिएंसी का पेशेंट होता है, उनके क्या इशारा चार्ट्स नहीं पढ़ पाता, लाइक वी कैन रीड 2 or 3 स्लाइड्स, बट विद द एक्सक्रोम फिल्टर्स इसमें क्या होता है, अब ये पहले हम डोमिनेंसी चेक करते हैं कि विच आई इज डोमिनेंट एंड विच इज नॉन डोमिनेंट। तो जो नॉन डोमिनेंट आई होती है, फर्स्ट उसमें हम एक्सक्रोम लगाते हैं, देन विल चेक कि कितना बेनिफिट हो रहा है पेशेंट को। इफ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब द सिंगल लेंस, पर कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ सिंगल आई में देने से पेशेंट उतना इंप्रूव नहीं करता, इन दैट कंडीशन वी नीड टू गिव बोथ आई लेंसेज, ठीक है।
तो फर्स्ट हमें ट्राई करना होता है नॉन डोमिनेंट आई में, देन आफ्टर उसके बाद हम दोनों आई में भी ट्राई करके देख सकते हैं। और जनरली क्या होता है सर, 99% केसेस में ओ टाइप रेड लेंसेज विल वर्क, ग्रीन बहुत ही रेयर ही जरूरत पड़ती है। लाइक जितने केसेस हमने खुद के हैं सारे मोस्टली आपके रेड में कवर हो जाते हैं। तो बेसिकली जो काम करता है वो रेड फिल्टर्स है, जो कलर डेफिशिएंसी में बहुत अच्छे से काम करता है। 80% patients improve with the red filters. Time same filters in the non-dominant eye, and then both. Red is more efficient. See, this is the normal eye. Left eye is normal, and the right eye there is a opacification. Now we try with the prosthetic lens. See, the both eyes are looking same. Both are looking like a same. And this is the another case of heterochromia iridum. In this condition, one eye is normal and other eye color is changed. One eye is different color, other eye is different color. In this lenses, in this condition, we can give the prosthetic lenses for the iris matching. See, now the both are the same. Special thanks to Mr. Gagan Sahani sir and Vishal Sharma for their contribution to the presentation. Thank you.